Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Good morning to all of you. I hope all of you are fine and doing well. This is class 9th old. Dear students, in this lecture, in our today's session, we are going to study our next test. That is present perfect tense. Okay, we will try to cover two tenses in our today session. So we will study present perfect tense in present perfect continuous tense. Okay, Abdullah Imran, mute your mic. So yesterday we came to know about present continuous tense. Now we are going to start present perfect tense. Okay, so I'm going to share the screen from where we are going to study this tense. Okay, so is it visible to you, Abdullah bin Faisal? Great. नो सर अभी नहीं दिख रहा. यस Yes, सर. sir. Okay, now it may be visible. Okay, present perfect tense. जैसा कि आप लोगों को याद है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब टेंस में किसी भी टेंस के साथ यानी परफेक्ट आ जाए, then we have to use third form of the verb. वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट. आप जब टेंसेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप लोग इस तरह की कंपेयर करें, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर, देन प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट. So perfect means third form of the verb. Okay, so present perfect tense में ये होता है कि in present perfect tense we use present perfect tense for those activities, for those action which are taken place in the past, in the recent past. For example, present perfect tense is used to express an action that occurred or completed at some point in the past. These tense expresses an idea of completion or occurrence of an action in the past without giving an idea about the exact time of its occurrence. अभी पास्ट परफेक्ट तो हमारे पास क्लियर है कि पास्ट परफेक्ट तो हम उस वी यूज फॉर those activities which have taken which have taken place in the past, but जिसका जिसका काफी टाइम हमारे साथ हुआ उसे फॉर दैट वी यूज जो बिल्कुल दूर पास्ट परफेक्ट. ओके, बट अभी कंफ्यूजन ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट परफेक्ट एंड past simple tense, because we use these two tenses for past. So what are the difference? इसमें डिफरेंस ये है कि स्टूडेंट्स याद रखें दोनों हम पास्ट के लिए यूज कर रहे हैं. प्रेजेंट पर एक तो पास्ट परफेक्ट है जो बहुत जिसका ज्यादा टाइम हो गया, 1 साल 3 साल ज्यादा, ओके, तो उसके लिए तो हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं, ठीक है. बट प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट सिंपल जो है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, इसमें डिफरेंस ये है कि जब हम कोई पास्ट टेंस की पास्ट एक्शन की बात करें उसमें हम टाइम मेंशन नहीं कर रहे हैं. देखें ना, ये देखें, विदाउट गिविंग एन एग्जैक्ट idea about without giving an idea about the exact time of its occurrence. It means that when did it take place. So when we do not mention the exact time of the occurrence of that action, so we use past perfect, present perfect. But when we mention the time, then we have to use past simple tense. For example, मैं आपको simple कह रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल एक जगह जॉब के हवाले से इंटरव्यू हो रही है, और फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माय क्वालिफिकेशन ड्यूरिंग इंटरव्यू, मेरे से मेरे क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा गया और मैं आंसर दे रहा हूँ अपनी क्वालिफिकेशन. अभी मैं अपनी मास्टर की बात कर रहा हूँ. देयर आर टू वेज टू टॉक अबाउट माय मास्टर. ओके, उसमें ये है कि फॉर एग्जांपल मैं तो सिंपल ही कह सकता हूँ कि मैंने मास्टर की है. ओके, मैंने इंग्लिश में मास्टर की है. So this is present perfect. I have done my master in English. Okay, simple, without
referring the exact time that uh, when did I do my master. बट अगर मैं अपनी मास्टर की बात कर रहा हूँ और मैं टाइम मेंशन कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि 2018 में मैंने की है, so then I have to use past simple that I completed या I did my master in 2018. So I hope it would be clear to you. अभी समझ आ गई ना आप लोगों को the difference between these two tenses? Asadullah. Yes, sir. Yes, Okay. sir. So this is the way. Though the time of the action is not exactly known, the tense is mostly used to refer the action completed in the recent past or a very long, not a very long time ago. A very long time ago के लिए तो हम क्या यूज कर रहे हैं? Past perfect tense. Okay, past perfect tense. यहाँ जितने भी सेंटेंस हैं नीचे या आप बुक खोल के देख ले, प्रेजेंट परफेक्ट के जितने भी एग्जाम्पल हैं उसमें एक्शन की बात कभी किसी जगह नहीं हो रही, सॉरी टाइम की, कि जो एक्शन कंप्लीट हो गई, हम मैच जीत चुके हैं। सो उसमें कभी भी देयर इज नो आई मीन टाइम मेंशन। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर ले लास्ट मैच की, तो अगर हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने लास्ट नाइट मैच जीता अफ्रीका से, so Pakistan won the last match last night against South Africa. Okay, so हम time mention कर रहे last night, so then we have to use present past simple tense. Past simple tense, Pakistan defeated South Africa last night in T20. Okay, but मैं जस्ट कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने मैच जीता है, तो पाकिस्तान हैज won the match. Pakistan has won the match. But अगर मैं टाइम मेंशन करूँ कि लास्ट नाइट, देन आई हैव टू यूज पास्ट सिंपल टेंस। पाकिस्तान won the match against South Africa last night. So I hope it would be clear to you. समझ आ गई ना? Oh, okay. So now when it comes to its Urdu identification, तो उर्दू आइडेंटिफिकेशन में ये है कि हमारे पास उर्दू आइडेंटिफिकेशन में हैज सॉरी चुका है और चुकी हैं या चुके हैं, ये भी इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन है। और ज़रूरी नहीं है कि कोई सेंटेंस में ज़रूरी नहीं है कि ये चुका है, इसमें इस तरह भी आ सकते हैं, कर लिया है। समझ आ गई ना जो पहले आप लोग कि मैं बता चुका हूँ। सो उर्दू आइडेंटिफिकेशन आप देख ले, बट इसमें लास्ट में है आता है, ठीक है, या सिंगुलर या प्लूरल। ओके, सो दिस इज अबाउट उर्दू आइडेंटिफिकेशन। नाउ सेंटेंस स्ट्रक्चर। अच्छे सेंटेंस स्ट्रक्चर में ये है कि मेन वर्ब, when it comes to sentence structure, so we talk about two verbs, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। टेंसेस में हम यही दो चीजें देखते हैं, मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब। और पेपर में अगर आप कोई मिस्टेक करे मेन वर्ब में या हेल्पिंग वर्ब में, तो आपकी पूरी सेंटेंस गलत तस्वर की जाती है। ओके, सो यू हैव टू बी केयरफुल when you are studying tenses, so you must know about what is the helping verb and what is the main verb of this tense. Okay, so main verb पहले भी मैंने बताया, जो परफेक्ट आ जाए सो वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब या पास्ट पार्टिसिपल। ओके, यानी थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं या कंटिन्यू फॉर्म को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब है, it means helping verb, has and have according to the subject. Note, if the subject of the sentence is she, uh, he or singular noun, so helping verb has will be used. Okay, has. But if the subject of the sentence is I, you, we, they, or plural subject, then we have to use have. Okay, this is the पॉजिटिव यानी असर्टिव सेंटेंसेस। ओके, फॉर्मेटिव सेंटेंसेस। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है हमारे पास, सब्जेक्ट हैज हैव, पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, ये देखे द गेस्ट हैव अराइव्ड, मेहमान पहुंच चुके हैं। द गेस्ट हैव अराइव्ड, गेस्ट प्लूरल है ना, गेस्ट,
अगर एक गेस्ट होता तो फिर हैज होता। ओके, आई हैव ईटन माई मील। देखे ना, जितने भी एग्जांपल दे, देयर इज नो मीन, देयर इज नो टाइम। ओके, टाइम इज नॉट मेंशन, टाइम इज नॉट गिवन। ही हैज रिसीव्ड माई लेटर, ही हैज रिसीव्ड माई लेटर। बट अगर आप कहते कि उसने कल मेरी खत, सो ही रिसीव्ड माई लेटर yesterday, then past simple tense. Okay, she has given me her book. So these are few example of past perfect tense. Okay, so Abdullah, Imran, are you getting me what I'm saying? यस सर। So अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट में और पास्ट सिंपल में डिफरेंस क्या है? What is the difference? परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में एक सर। प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट में हैज अब लगता है, और दूसरे वाले में हैड लगता है। हम्म। दोनों में से थर्ड फॉर्म होती है। लो, यस। बता दिया ना सर। ओके, नाउ नेगेटिव सेंटेंस। ओके, नेगेटिव सेंटेंस नॉट हमने यूज करनी है। ओके, यू हैव नॉट, फॉर एग्जांपल, यू हैव नॉट completed your work, you have not asked me for help, and she has not brought the table. I have not enjoyed the party, yeah, they have not called us. Okay, so these are the present perfect tense. These are the few example of present perfect tense. Negative sentence, interrogative sentence। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमारे पास क्या होता है? इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता है, वो अ, हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है या पहले? राही किस देयर, यस राही कब बताएं? ये इंटरोगेटिव सेंटेंस में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से आगे होता है या बाद में? राही है क्लास में? यस, राही किस देयर। पता नहीं सर। नहीं सर। ओके, वो क्लास में है, बट सॉरी आई थिंक। सो हैव यू prepared yourself for the exam? इस तरह फॉर एग्जांपल आज मैं आप लोगों से पूछा कि हैव यू प्रिपेयर्ड योरसेल्फ फॉर द एग्जाम, क्या आप एग्जाम की तैयारी कर चुके हैं या? समझ आ रही है? यस। हैज शी ब्रॉट हर कैमरा, हैज ही फिनिश्ड हिज वर्क। सो आपने अब्दुल्ला इमरान याद रखें, टेंसेस में आपने जो हेल्पिंग वर्ब होती है और वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, ये अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट हम लगाते हैं। वी हैव टू यूज, वी हैव टू पुट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को आपने देखना है जनाब कि सब्जेक्ट में हमारे पास क्या है, सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है, प्लूरल है, या सब्जेक्ट में हमारे पास प्रोनाउन आई, वी, यू, शी, दे और वी के मुताबिक लगानी है। ओके, सो यहाँ आप लोगों ने देखनी है हैज और हैव में से, दोनों में से यू हैव टू choose the one so according to the subject। have I sent my email, I so have इधर देखे has because it is he, has he bought a new laptop? So this is the way to translate uh, present perfect tense into English। अच्छा, एक मिनट मैं देखता हूँ। आ गई ना क्लियर, समझ आ गई? सर जी सर। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अच्छा अब्दुल्ला इमरान, आप थोड़ा रिवाइज करें मुझे कि सर आज हमने ये पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हवाले से, स्ट्रक्चर के हवाले से,
और उर्दू आइडेंटिफिकेशन के हवाले से बताएं। सर प्रेजेंट परफेक्ट में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, हैज हैव आएगा, सब्जेक्ट हैज है, फिर मेन वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो नेगेटिव वर्ब में की कौन उसका सी फॉर्म, जो वर्ब की कौन सी फॉर्म, आप पहले एग्जांपल बताएं उसके बाद फिर थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल दो तीन सेंटेंस फॉर मुझे एग्जांपल, बताएं। he has completed his work, ही। अच्छा, has completed his work। कोई और सेंटेंस दे के साथ यूज करें, दें। Your- they यस। they uh, they have written their homework, दे हैव। written their home task। ओके, गुड। ओके, मैं एक्सरसाइज, कोई क्वेश्चन, एनी कंफ्यूजन, डू यू हैव नहीं एनी सर। कंफ्यूजन? ओके, अच्छा यहाँ देख ले, एक एक्सरसाइज है, उसमें आप देख ले कि हाउ टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। ओके, हाउ टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। अमार वसीम ईंट, ये कौन है? राइट, जावेद। ओके, सो यहाँ देख ले, स्क्रीन नजर आ रही ना आप लोगों को, ये वाला? नहीं आ रही सर। अभी आ जाएगी, एक मिनट। Abdullah bin Faisal, do you have any question? Asadullah, Rahik, Naveed, Amar. No, sir. No, sir. If you have any confusion, you can ask. Okay. Now, आ गई स्क्रीन? Yes, sir. आ गई है। ये वाला देखे, put the verbs into the correct form, present perfect tense. For example, I not, not का मतलब है negative sentence, work। तो देखे, I have not worked today. Okay. अच्छा, इधर देखे, ये जो नेक्स्ट सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 2, अब्दुल्ला इमरान, नजर आ रही ना आप लोगों को? सर ये वाला, इसका, सर इसका ये, सर we bought a new lamp. वी, Bought a new lamp। नो नो, ठीक है, past indefinite लग, सब बन सकते हैं past indefinite। वैसे इसका है we has bought a new lamp। सो वी, We have इसमें bought a new टाइम lamp। मेंशन नहीं है ना, कोई टाइम मेंशन नहीं है, सब प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा। ओके, अगर आप यस्टरडे या लास्ट ओके मंथ या ओके ओके। लास्ट डे की बात हो रही, देन वी हैव फिर टू। हाँ, सेंटेंस में आपने देखा इधर, अगर यस्टरडे आ जाए देन पास्ट सिंपल टेंस होगी। सो वी हैव बॉट ओके सर। अ न्यू लैम्प। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, नवीद, आर यू देयर? नवीद, आर यू देयर? अमार वसीम, राहिक, असदुल्ला मुख्तार। अच्छा, अब्दुल्ला इमरान, इसमें क्या आएगा बेटा? वी नॉट प्लेन यानी निगेटिव सेंटेंस, ये आपके पास वर्ब है, नॉट का मतलब we have निगेटिव से। not we have not planned our holidays yet। यस, वी हैव नॉट प्लेन्ड और हॉलीडे येट। प्लेन का डबल Yet। एन पर आ जाएगा। अच्छा, इसमें क्या आएगा? वेयर वर यू? ओके, ये तो थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, नाउ लुक एट दिस फिफ्थ नंबर, ही, ये वाला ही, यहाँ देख लें, ही, He had अब्दुल्ला not इमरान, written. He had not written. बताएं बताएं। he has written 5 letters। ही हैज रिटन। शमून, आप क्यों लेट आए क्लास में? हाँ जी, मैं वेटिंग रूम में बैठा था इतनी देर से। मैं तो वेटिंग रूम में, ये आप
अच्छा, ये आज 3 हम महीने। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बता रहे थे। सो अब्दुल्ला इमरान इसमें क्या है, फिफ्थ नंबर में He has written 5 letters. he has written 5 letters. वेरी गुड, वेरी गुड, समझ आ गई ना? जी सर। अच्छा, ये असदुल्ला मुख्तार क्यों रिस्पांस नहीं कर रहे आप? सो तो नहीं रहे असदुल्ला मुख्तार? अच्छा शमून, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट का बता रहे थे। सो अच्छा सर। नंबर 6 में क्या आएगा? शी। अच्छा इधर देखें, नॉट का मतलब है निगेटिव सेंटेंस, सी आपके पास वर्ब है। सो शी हेम फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो इसमें ये fill in this blank, fill in this blank, okay, according to the present perfect tense. Yes, she He has not seen him for a long time. she बता, Has not. she has not seen him for a long time. She saw seen, okay, she has not seen him for a long time. Very good. So it was all about the प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हम अगर आप लोग इस तरह की प्रैक्टिस किया करें, शो ऑल करेक्ट आंसर, ओके। ये देखें, she has written 5 letters, she has not seen him for a long time, school has not started yet, सर ऊपर का नजर नहीं आ रहा। ओके। आगे समझ? सो ये हमारे पास इसकी आंसर है, ओके। सो ओके स्टूडेंट्स, it was enough for today, okay. Tomorrow we will study our next tense. This is present perfect continuous tense. अभी time start है, only 5 minutes are left. So still if you have any confusion, आप लोगों ने अभी क्या करना है, बैठ की प्रैक्टिस करें। अभी तक जो जितनी भी 3 टेंसेस हमने पढ़े उसकी प्रैक्टिस करें, और इंग्लिश बी की बुक में जाके वहाँ जो हमारे पास एग्जाम्पल है वो बिल्कुल याद करें। कोई एक एक सेंटेंस याद करें, पेपर में कोई भी सेंटेंस आ जाए तो आप इजीली ट्रांसलेट करें। सो डू प्रैक्टिस ऑफ दिस टेंस, ओके, डू प्रैक्टिस, मेक योर ओन सेंटेंसेस। आप अपने सेंटेंसेस बनाए, कल मुझे दिखाए कि सर मैं कल बैठ के मैंने अपनी ये सेंटेंस, तो ये इसमें ये होता है कि आपका टेंसेस भी क्लियर हो जाएगा, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और साथ आपकी क्रिएटिविटी भी इम्प्रूव होगी। यानी व्हेन यू थिंक समथिंग एंड व्हेन यू राइट समथिंग आफ्टर थिंकिंग, सो इट इम्प्रूव योर creativity. So I hope it would be clear to you. Still, if you have any question, confusion, you can ask me in tomorrow session. Okay, clear? So see you tomorrow, inshallah. Okay. Start preparation for your next exam, and remember all your friends, all your teacher in your special prayers. Okay, रमज़ान का ख्याल रखें, सोशल मीडिया से दूर रहें, ओके, कुरान पाक की तिलावत किया करें, कोशिश करें कि मस्जिद जाके नमाज पढ़े, स्पेशली सुबह शहरी के बाद डायरेक्ट न सोए, जाके मस्जिद जाके वहाँ से आप लोग। यस, आवाज़ नहीं आ रही? ओके, सो सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।